طور سے ہم دیکھیں گے. ایکچوئل میں یہاں پہ جو 20ویں آیت میں لکھا، متی کی انجیل 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں اس کا آپ کو سیاق و سباق سنانا چاہتا. اگر صرف ہم اتنی ورڈز پہ دیکھیں تو بہت سارا میننگ نکال سکتے ہیں، ہم بہت لمبا ایک لیکچر سن سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہی کیوں گئی تھی؟ اب میں اس سے اوپر والی بات بتاتا ہوں، اس سے نیچے والی بات بتاتا ہوں کہ آخر کیا تھی اور اس کا کیا مقصد تھا، پھر ہم آگے چلیں گے. تو اگر ہم 17ویں آیت سے دیکھیں تو یہ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اچھا آپ غور سے سنیے، یہاں لکھا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ہٹ نہیں جاتے، ٹل نہیں جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، تب تک شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پورا نہ ہو جائے. غور سے سنیے اس بات پہ حوالہ کیا کہہ رہا ہے. یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین بھی جو ہے اس کا بھی ٹلنا جو ہے تب تک نہیں ہوگا، خاتمہ نہیں ہوگا جب تک شریعت کا ایک ایک نقطہ بھی کیا ہو جائے، پورا نہ ہو جائے. تو آپ نے شروع میں دیکھا 17ویں آیت میں لکھا، کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو کیا کرنے آیا ہوں؟ منسوخ کا مطلب رد کرنا، ختم کر. نہیں یہ سب جو پہلے والی آئی تھی، آج آپ کو پتا ہے کہ ہماری دنیا میں اس طرح کے بہت سارے سلسلے کے نہیں جو پہلے آئی تھی وہ بیکار تھی، وہ رد گئی تھی، وہ بدل گئی تھی، وہ یہ ہو گئی، اب جو آیا وہ بڑا زبردست ہے. تو یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ خدا کے کلام کو رد نہیں کیا جا سکتا. جو خدا نے ازل سے فرمایا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں اسے پورا کیا جا سکتا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ خدا کے کلام کو رد کسی کی جرت نہیں کہ وہ اسے رد کر دے اور یہ کہے کہ خدا نے اس وقت جو کلام کیا تھا اس کا کوئی معنی مطلب نہیں، وہ بالکل بیکار تھا، وہ فضول تھا، اب جو سب کچھ آیا وہ زبردست ہے. اسے رد نہیں کیا جا سکتا. اور یسوع مسیح وارن کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے کہ اگر کوئی نقطہ اور شوشہ بھی ادھر سے ادھر کا ہلائے گا اور اگر کوئی اس طریقے سے آدمیوں کو سکھائے گا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے کیا ہو جائے گا، چھوٹا ہوگا. لیکن جو کوئی ان کے بارے میں سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوگا، بڑا کیا جائے گا. اور یہ تب بات ہو رہی ہے، پلیز اس بات کو سمجھیے خدا کے لوگوں مقدسو، یہ بات تب ہو رہی جب اب تک یسوع مسیح اپنے جلال کو نہیں پہنچا. یہ بات کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ بات یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ بات تب ہو رہی جب ابھی کفارہ نہیں ہوا تھا. تو یسوع مسیح یہ وارن کر رہے اور خبردار کر رہے اور اپنے شاگردوں کو بتا رہے، یہ اسپیشلی ٹیچنگ اپنے شاگردوں کو دی جا رہی ہے کہ میں کتاب مقدس جو توریت جو نبیوں کے صفے ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. اب میں نے لاسٹ ٹائم ایک حوالہ جس پہ ہم نے کلام سنا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ وہاں لکھا پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو کیا کریں، سمجھیں، اور جتنی باتیں اس کے حق میں، یعنی کس کے حق میں؟ یسوع مسیح کے حق میں، جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی گئی موسیٰ سے شروع کر کے توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی گئی تھی ان کو سب کیا کر دی، سمجھا دی، ان کو سمجھا دی. کیونکہ دراصل وہ کلام مقدس کو عقیدت سمجھتے تھے. اور پھر آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی مقدس کتابوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صرف چومنے کی حد تک ہے. اس کی کبھی تحقیق نہیں کی جاتی کہ کون سی بات کس وقت کے لیے رکھی گئی. اور آج افسوس یہ ہے کہ آج کلیسیا کے اندر بھی سیم ٹو سیم ایسا ہی ہے. ہم بائبل مقدس کو یہ نہیں سمجھ رہے، ہم یسوع مسیح کی یہ بات ہماری پلے ہی نہیں پڑ رہی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا تھا کہ جتنی باتیں میرے بارے میں لکھی ہیں میں ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں ان کو کیا کرنے آیا ہوں،
मसीह ने अपनी जिंदगी में वो सारी प्रोफेसीज, वो सारी नबूवतें, वो सारी पेशेन गोइयाँ जितनी पुराने अहदनामे में लिखी थी, उनको क्या कर दिया? पूरा कर दिया, कंप्लीट हो गया। और फिर जब हम गुड फ्राइडे की इबादत मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस वक्त आखिरी वर्ड जो यीशु मसीह के थे वो हम ये सुनते हैं कि क्या कहा उसने? तमाम हुआ। क्या कहा उसने? तमाम हुआ। मतलब उसने अपने बारे में जितनी भी प्रोफेसी नबियों ने की थी, जितना कुछ भी उसके बारे में कहा गया था, उसने उनको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है, जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक नई चीज शुरू होती है। आमीन। हमारी अफसोस की बात है कि आज भी हम बाइबल मुकद्दस को अकीदत में पढ़ रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे की सारी पेशेनगोइयों को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? अब पुराने अहदनामे में हम क्या ढूंढ रहे हैं? जबकि पुराना अहदनामा इस बात से भरा पड़ा था कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा सितारा, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मसीहा आने वाला है, जो ये सब कुछ उसके बारे में जो लिखा गया, जो ज़बूर में इसके बारे में पेशेनगोइयाँ थी, जो नबियों के सहीफों में इसके बारे में पेशेनगोइयाँ थी, जो जितनी भी मूसा की तौरात में इसके बारे में पेशेनगोइयाँ थी, उनको वो पूरा करेगा। और फिर एक वक्त आया कि यीशु मसीह ने आके ये दावा किया कि ये सब, आपको पता, पहला वाज जब उसने किया था तो यसाया की किताब में जो हवाला लिखा था, तो उसने कहा कि आज ये सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा था उसे अभी तक किसी भी नबी ने पूरा नहीं किया था। जो कुछ यसाया के अंदर पेशेनगोइयाँ एक मसीहा के बारे में, खुदा के खादम के बारे में, और जो कुछ भी इसके बारे में लिखा था, उसे अगर किसी ने फुलफिल किया, पूरा किया, तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कि आज ये सब, ये नविश्ता क्या हो गया? पूरा हो गया। तो जब कोई नविश्ता, कोई प्रोफेसी, कोई पेशेनगोई पूरी हो जाती है, तो फिर हम नए की तरफ जाते हैं, ना कि उन्हीं की बार बार उन्हीं को याद करते हैं जिनको पूरा कर दिया गया है। अगर आप अकीदतमंद मसीही हैं, तो फिर यकीनन आप बाइबल को इस तरीके से पढ़ेंगे कि बस ये खुदा का कलाम है, बस ये खुदा का कलाम है। खुदा ने इसलिए कलाम नहीं दिया था, बल्कि खुदा ने इसलिए कलाम दिया था कि उसे क्या किया जाए? पूरा किया जाए। और यीशु मसीह ने आगे ये सब कुछ किया, और यही गुड न्यूज़ है, यही खुशखबरी है कि हम, मेरा और आपका नजात देता जो उसने सब कुछ किया। ये तमहीद बांध के आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। किनसे? यीशु मसीह किनसे बात कर रहे थे? अपने शागिर्दों से बात कर रहे थे। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी। ऐसे लगता है जैसे यीशु मसीह को कोई चिढ़ थी इन लोगों के साथ। क्या उसको कोई चिढ़ थी उनके साथ? यीशु मसीह चाहते थे कि कहीं ये हलाक हो जाए, दफा हो जाए मेरे सामने। क्या ऐसा था उसका कोई नजरिया? नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल यीशु मसीह ये चाहते थे कि वो इस बात को समझें, और आज भी कलीसिया के अंदर पुलपट से ये सब कुछ बयान किया जाता है बगैर समझ के। हालांकि सब कुछ बयान किया गया, और वजह यह है कि रूह कुछ उन लोगों के जहन को खोल नहीं रहा। और यही वाक़या हुआ था शागिर्दों के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में लिखा कि उसने उनका जहन खोला। हालांकि ये वही लोग थे जो नस्ल दर नस्ल तौरात की तिलावत कर रहे थे, जो नस्ल दर नस्ल ज़बूर की तिलावत कर रहे थे, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के सहीफों की तिलावत कर रहे थे, लेकिन वो उसको सिर्फ एक अकीदत में मानते थे कि हमारा खुदा है और ये उसकी किताब है और ये पाक किताब है और हम उसको माने और बस खत्म। लेकिन यीशु मसीह ने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझ सके, और फिर उनको बताया कि दरअसल ये सब कुछ जो कुछ लिखा था वो मेरे बारे में लिखा था, और मैंने वो सब कुछ क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसी, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फकी फरीसी कौन थे? ये यहूदियों का एक कबीला, मतलब एक गिरोह था, और ये वो लोग थे जो शरीयत के पॉइंट को जानते थे, नुक्ते को जानते थे। अगर आप पुराने अहदनामे की स्टडी करें और आप कुर्बानियों का वो सारा प्रोसेस जो उसको स्टडी करें, तो आप शायद बहुत दफ़ा उसको पढ़ के भी भूल जाएं।
کہ यहाँ क्या कहा, क्योंकि इतना सारा काम है कि ये इधर करना, इसका ये करना, वो करना, ऐसे करना, सुबह करना, शाम करना, दोपहर करना, इतने बजे ये नहीं करना, वो करना, इतना कुछ था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना मुश्किल तरीन मराहल था कि उसको याद करना हमारे लिए शायद बड़ा मुश्किल हो। लेकिन वो क्या करते थे, उनको याद रखते थे, फिर उसको दोहराते थे मुसलसल। लेकिन वजह यह थी कि जो कुछ उनको बयान किया गया उन्होंने फिजिकली तो वो ले लिया, उन्होंने बिल्कुल मनान उनको रिसीव कर लिया, लेकिन वो उसकी रूह को कभी भी समझ नहीं सके थे, उस स्पिरिट को कभी भी हासिल वो नहीं कर सके थे कि दरअसल ये जो सब कुछ कहा गया है वो किसके बारे में या इसके पीछे मुहरकात क्या है। सो इसलिए यीशु मसीह ने ये आके कहा अपने शागिर्दों से कि अगर आप भी ये समझते हैं, हालांकि जो फकीर और फरीसी थे रोज़ा रखना मस्ट बात थी उनके लिए, वो ज़रूरी रखते थे और शायद हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे और वो इससे नहीं। लेकिन बात यह है कि वो रोज़ा तो रखते थे और वो रोज़ा क्या रखते थे, ये उनकी एक रस्म थी, ये वो समझते थे कि ये ज़रूरी है क्योंकि खुदा ने ऐसे कहा और फलां हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत है और हमारा सब कुछ उसको करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि जो हकीकी रोज़ा जो खुदा चाहता है ये वो वाला रोज़ा नहीं है। ये तो आप अपने बाप दादा की रिवायत तो पूरा कर रहे हैं, ये तो आप उस सारे प्रोसेस को जो आपने सीखा शुरू से और शायद वो गलत ही था लेकिन आप इसलिए उस पर अटल रहे क्योंकि वो क्या जी हमारे बुजुर्गों की रिवायत है, हमारे बाप दादा की रिवायत है, हमारे बाप दादा ने उसको कायम किया था, आप उसको पूरा करें। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे लिखा हुआ कहा कि तुम खुदा के कलाम की बानिस्बत अपनी रिवायत पर ज्यादा फोकस करते हो। सो वो रोज़ा रखते थे, वो दुआ करते थे, लेकिन आप अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील लूका अनाजील का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उनका ये रासबाजी वाला सिलसिला सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो हम रोजेदार हैं, हम बड़े दुआगो हैं, हम बड़ी दायकी देते हैं, हम बड़ा चंदा देते हैं, हम बड़ी खैरात करते हैं। लेकिन वहाँ क्या करते थे कि वो एक शागिर्द को इसलिए अपने साथ रखते थे ताकि ये क्या करे, आज के माँ बाप की खिदमत ना करे बल्कि ये क्या करे, हमारी खिदमत करे, हमारे साथ अटैच रहे। और अफसोस का मकाम है कि आज कलीसिया में भी ऐसा ही है कि हम बहुत सारे नए जो नौमरीद लोग होते हैं उनको अपने साथ इसलिए रखना पसंद करते हैं ताकि वो हमारी खिदमत करे, क्योंकि खादम क्या है जी, 2 चंद इज्जत के लायक है। ये हवाला हमें रटा हुआ है। वजह यह है कि हमने यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया। आपको पता है कि आखिरी जुमेरात जब यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धो रहा था तो उसने कहा तुम मुझे आका और उस्ताद कहते हो। किसी भी यहूदियों के अंदर कभी किसी उस्ताद ने किसी के पाँव नहीं धोए थे, ये काम अदना मुलाजमों का था, ये आम जो लोग थे उनका काम था। कोई जो रबी होता था, जो उस्ताद होता था, वो कभी भी किसी के पाँव नहीं धोता था। लेकिन यीशु मसीह ने ये बयान किया कि दरअसल रबी या उस्ताद होने का मतलब बॉस होना नहीं है, मालिक होना नहीं है, रोबदार लीडर होना नहीं है, बल्कि ये बयान करना है कि मैं खुदा की पूरी पूरी क्या करता हूँ, नुमाइंदगी करता हूं। इसलिए उसने कहा तुम मुझे आका और उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि क्या है, मैं हूं। लेकिन जब मुझ आका और उस्ताद ने तुम्हारे साथ ये किया तो तुम पर भी वाजिब है कि तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। दैट्स द रियल टीचिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये है मसीह की सही तालीम। इसलिए वो रोज़ा भी रख रहे थे, वो दुआ भी कर रहे थे, वो दायकी, वो खरात, वो हैकल को चंदा और दीगर सारी रसूमात कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रसूमात थी। जैसे कि आज के दौर में कलीसिया में लोग चर्च में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो समझते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खुदा हमसे मिलेगा। और आज पुलपट से मोटिवेट भी यही किया जाता है कि आप इसलिए चर्च आए क्योंकि खुदा आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। क्या घर में खुदा आपके साथ नहीं था? क्या जब आप ड्यूटी कर रहे थे खुदा आपके साथ नहीं था? क्या जब आप सोए हुए थे खुदा आपके साथ नहीं था? क्या खुदा की स्पेसिफिक एक जगह है जहां पे वो मुलाकात करता है? जबकि यीशु मसीह ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां उनके दरमियान मौजूद हूंगा।
और हर जगह मौजूद कौन हो सकता है? सिर्फ ओमनी प्रेजेंस, जो खुदा है, जो कलाम है। सो ये क्या कर दिया हमने कि हमने इसको सारे सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया, और आज हमारी दुआ रोज़ा सब आज जो है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि हमारे बाप दादा की रिवायत है, वो कलीसिया ने एक सिस्टम बनाया था। इसलिए जबकि ठीक है, अच्छी बात है कोई रोज़ा रखता, मैं इसके खिलाफ नहीं कि कोई रोज़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दरअसल जो रोज़ा खुदा का मकबूल नज़र है, क्या ये वो है? क्या हम इस तौर से होते हैं कि हम ये कह सके कि मैं और बाप एक हैं? क्या हम रोज़ा रख के इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम ये कह सके कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं आपका कोई हेड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खादिम हूँ जो हर वक्त मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हर वक्त मसीह को पेश करने के लिए, जो हर वक्त मसीह के जख्मों को अपने ऊपर लिए हुए, जो हर वक्त मसीह की मौत को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके दरमियान रहता हूँ। क्या खुदा के लोगों को ये वाजिब नहीं है कि वो ये कहें कि मैं नहीं हूँ कुछ, बल्कि जो कुछ है वो मसीह है, और मैं तो सिर्फ उसको पेश करने के लिए, मैं कोई बॉस नहीं, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं तो खादम हूँ जो सिर्फ वही कुछ करता है जो उसे करने के लिए कहा गया है। सो रास्तबाजी उनकी ये थी कि वो ये समझते थे कि 10 अहकाम हमने पूरे कर लिए, इसलिए अब हम जो मर्जी करें, अब हम बॉस बने, लीडर बने, रोब जाने, किसी को जहन्नम का फतवा दे दें, किसी को कुछ कर दें। चूंकि हम मजहबी लीडर हैं, हम शरीयत के नुक्ते और शोशे को जानते हैं, इसलिए हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम बड़े आलिम हैं, इसलिए हम किसी को भी मसलूब कर सकते हैं, किसी को भी कोड़े मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फतवा देने का क्या हो गया? सर्टिफिकेट है, इसलिए कि हम आलिम हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसकी वो खिदमत कर रहे हैं, जिसके वो काहिन है, जिसके वो खादम कहलाते हैं, वो तो मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया, वो तो मोहब्बत का खुदा है, वो तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का दर्स देता है। तो फिर आपको किसने कह दिया कि आप मजहबी लीडर होकर किसी का भी कोई फतवा जारी करो? इसका मतलब है कि उनकी रासबाजी, वो जो रासबाजी समझते थे, वो अपने कामों के वसीले से, क्योंकि जी हमारे पास 40 रोजे मैंने पूरे के पूरे 40 रख लिए, इसलिए अब मैं क्या हूँ जी, बड़ा पाक और क्या हो गया, मुकद्दस हो गया, सेंट हो गया, अब मैं तकद्दस माब हो गया, अब मेरा ऊंचा चुके दर्जा कलीसिया के अंदर आला पोस्ट मुझे मिल गई, इसलिए मैं एक तकद्दस माब हूं, जबकि आम लोग हैं वो कूड़ा करकट हैं। क्या यीशु मसीह की तालीम ये थी? इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को वार्न किया, खबरदार किया कि अगर तुम्हारी रासबाजी, यानी ये जो लोग हैं, ये जो दिखावे वाले लोग हैं, जिनकी दुआ और रोजा और चंदा और खैरात और इबादत और हर एक चीज दिखावा है, हालांकि अंदर उनका बदला नहीं है, वो सिर्फ इसलिए रोजे रख रहे, इसलिए दायकियां दे रहे, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारे बाप दादा की रवायत सब कुछ चल रहा है, इसलिए हमें करना जरूरी है। लेकिन वो अंदर से वो वाले नहीं है जो खुदा चाहता है, क्योंकि अगर अंदर से हो तो वो भी आम शख्स की तरह अपने आप को समझे, अपने आप को भी आम लोगों के बराबर बनाए, अपने आप को भी, ये जो बड़े बड़े टाइटल, ये जो बड़े बड़े सब कुछ लेने का मतलब ये होता है कि मैं दरअसल क्या हूं, बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, आप छोटे हैं, मेरी सीट ऊंची है, आप नीचे हैं, मेरा रुतबा ऊंचा है, आप छोटे हैं, मेरे पास अथॉरिटी है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये टोटली बाइबल के अगेंस्ट है, ये स्पिरिचुअल तालीम नहीं और ये मसीह की तालीम भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम्हारी रासबाजी इन फकीर, ये जो जितने भी लीडर साहबान हैं, अगर आप इन्हीं की तरह समझते ना, ओ ये बड़ा जबरदस्त लीडर है, इससे तो बड़े मौजे हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा खादम है, ओ इसका तो बहुत बड़ा टाइटल है, वाह वाह इसके तो कपड़े बड़े जबरदस्त, तो गाड़ी में बैठ के आता है, ये तो भाई इसका क्या रोब, इसका उठना बैठना कैसा, ये तो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, ये तो बाहर से अमेरिका से आया, ये दीगर से आया। अगर आपके पास ये है कि मैं भी काश इस बंदे जैसा बनूं, मैं भी इस खादम जैसा बनूंगा, मैं भी तो इसका मतलब है कि आप मसीह की तालीम को क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, आप रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही की तरह बनना है, और वो कौन है जी,
हालेलुया। बस तुम कामल करने वाले यीशु को, हमें किसी नबी को तकने के लिए नहीं कहा गया, किसी मुकद्दस माप को तकने के लिए नहीं कहा गया, किसी रसूल, किसी लीडर, किसी मजहबी कोई भी फतवा देने वाले को हमें नहीं कहा गया कि हम उसको अपना मोटिव बनाएं, वो हमारा लीडर, हम उसको फोकस करें, हम उसकी तरफ देखें, उस जैसे बनने शुरू करें। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मिजाज, अपना चाल चलन, अपना रहन सहन, अपना सब कुछ किसकी मान बनाना है? यीशु मसीह की मान, कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। सो यहाँ लिखा है कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी। इसका कहने का मतलब हर चीज ये नहीं कि फकीर और फरीसी हफ्ते में 2 दफा रोजा रखते थे, तो आपको कितनी दफा रखना चाहिए? 4 दफा रखना चाहिए था। क्या हम बता सके? ओह यार देखो, वो तो 2 दफा रखते थे, मेरी रासबाजी ज्यादा कि मैं 4 दफा रखता हूँ। वो तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम दुआ करते थे, मैं तो भाई 5-6 दफा दुआ करता हूँ। मेरे तो इतने टाइम दुआ है, इसलिए मेरी रासबाजी ज्यादा हो क्या बात। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि कहने का मतलब ये था, अब एक गौर से सुनिए कि वो इस बात को क्या समझते थे और फिर यीशु मसीह ने क्या वजाहत की। अगर 21वीं आयत इसी के नीचे शुरू होता है, उसका बाद में लिखा गया है कि वो रासबाजी दरअसल जो फकीर और फरीसियों की रासबाजी से क्या थी, और यीशु मसीह क्या बयान कर रहे, कहते तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। 10 कमांडमेंट्स में 10 अहकाम में लिखा तू खून ना करना, तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू लालच ना करना। और फिर फकीर फरीसी और ये जितने भी शरा के आलम थे, ये जितने भी यहूदी लीडर थे, वो ये सब कुछ अपने आप को ऐसे करते थे कि नहीं 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 खून नहीं करना। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं खुदा, और कहेंगे तुम यहूदा के कबीले में से नहीं, ये तो बनी इस्राएल में से नहीं, इसलिए इसको कत्ल कर दो, तो उनके लिए वो कत्ल करना आम सी बात थी। वो शायद सिर्फ ये समझते थे कि ये कहा गया कि मतलब जो खुदा के लोग, ये यहूदी, ये इसराइली, इनको नहीं, हालांकि उन्होंने अमाल की किताब पढ़े तो वही यहूदी लोग, वही जो मसीह को जिन्होंने कबूल किया था, उन्होंने उनको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और वो इसको कत्ल नहीं समझते थे। तब उनके ऊपर 10 अहकाम की कोई छाप नहीं थी, क्योंकि वो इसको क्या करते थे। और बाज़ का हम दावा करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि नहीं जी हम तो अमन पसंद है, हमारे पास तो अमन वाला, हम तो अमन पसंद है, लेकिन अमन करना चाहते नहीं हैं। जब हम अपने मुंह से कहते हैं कि हम अमन पसंद है, तो फिर करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ महज मुंह से नहीं। तो ये जो फकीर और फरीसी थे, ये सिर्फ मुंह से बोलते थे कि हम ये हैं, हम पाक हैं, हम ये है, सब कुछ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर जो कुछ भरा था वो नहीं। और यीशु मसीह के ज़माने में जो सरदार काहन थे, सरदार काहन हन्ना और कैफा जो थे, उनके बारे में हिस्ट्री है कि वो बहुत बड़ी रिश्वत दे के उन्होंने ये पोस्ट ली थी। पोस्ट कौन सी ली थी? खुदा के खादम बनने की। कौन सी पोस्ट ली थी? मतलब मैं खुदा का खादम, मेरे अंदर इतनी हलचल है कि मैं खुदा का खादम बनूं, लेकिन मुझे रिश्वत देनी पड़े, किसी को गिराना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी चर्च में किसी को तबाह करना पड़े, कोई बिल्डिंग बेचनी पड़े, कुछ भी, लेकिन मैं उस चर्च का क्या बनूंगा जी? खादम बनूंगा। आज कलीसिया में यही हो रहा है कि फकीरों और फरीसियों वाली रासबाजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और वो रासबाजी जो मसीह की तरफ से मिलती है उसको हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि मसीह की रासबाजी में तो लीडरशिप ऐसी नहीं है। उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चर्च मुझे चाहिए, मैं इसका लीडर बनूंगा। केस चलाओ, कचहरियों में जाओ, वकील करो, अदालत में जाओ, जज साहबान को रिश्वत दो, मुझे ये चर्च का लीडर बनना। वजह ये नहीं कि उनके अंदर ये पैशन है कि वो लोगों को बचाए, वजह ये है कि उनको फकीरों और फरीसियों की तरह लीडर बनने का क्या है? शौक है। उनको अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट, अपना स्टेटस बुलंद करने का शौक है। पीछे वजह यह है उनके अंदर पैशन नहीं, क्योंकि जिनके अंदर पैशन है वो रूह कुद्स के हसार में रहते हैं, वो मसीह के साथ रहते हैं, और जहां मसीह उनको बिठाता है, जहां रूह कुद्स की मर्जी होती है, वो वहीं बैठते, वहीं खड़े होते और वही कुछ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी मर्जी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीर और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा के लोगों, बादशाही अनकरीब है, बादशाही जारी है, बादशाही में दाखिल होने वाले जोर मार रहे हैं,
बादशाही में दाखिल हो रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने बादशाह के साथ लिंक बना लिया। आमीन। जो बादशाही में जा रहे हैं उन्होंने बादशाह के साथ लिंक बना लिया, और वो बादशाह को बादशाह मानते हैं, वो अपने आप को बादशाह नहीं मानते। हर वो बंदा जो अपने आप को लीडर, अपने आप को खादम, अपने आप को मजहबी रहनुमा कह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर एक ही टाइटल लगाता है, और वो है मसीही। वो अपने ऊपर एक ही टाइटल लगाना पसंद करता है और उसी के सहारे रहता है, क्योंकि दरअसल वो मसीह से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इसकी अहमियत, उसका सब कुछ है, वो मसीह में है। सो ज़रूरी है कि हम इन बातों को जानें कि जो चीज़ें यीशु मसीह ने पूरी कर दी, प्लीज़ इस बात को समझिए। यीशु मसीह ये कह रहे थे अपने शागिर्दों को, और आज रूहुल कुद्स हमें ये कह रहा है कि हम ये समझें कि जिन बातों को मसीह ने पूरा कर दिया है, अब उससे नेक्स्ट चले। अकीदत में ना पढ़े बस ये जी खुदा का कलाम, ये बाइबल मुकद्दस, ये जी 66 किताब, ये जी हमारी किताब, ये जी पाक किताब, ये मुकद्दस किताब, बस ये हम इसको पढ़ें, सुबह खोलें शाम को पढ़ें, ये नहीं। मसीह को फोकस कीजिए। जब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, तो दरअसल दुनिया के मुताबिक कलीसिया ने इसको समझा। क्योंकि जब दुनिया के किसी लीडर ने, दुनिया के मज़ाहब में जितने भी लीडर, उन्होंने बोला कि आप मेरे वसीले के बगैर आप खुदा तक नहीं आपकी रसाई हो सकी, तो वो उसको ऐसे समझे। और आज अफसोस की बात है कि मसीही कलीसिया भी यीशु मसीह के अल्फाज को ऐसे ही समझ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं था। जब यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम वो क्या करेंगे, हम उनकी जो तख्त है उसको लिपट जाएंगे, उसके जो पायदान है उसको चमट जाएंगे और फिर वो हमें खुदा तक ले जाएगा। ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ बात आइडियोलॉजी की हो रही है, यहाँ बात स्पिरिट की हो रही है, यहाँ बात थॉट्स की हो रही है। तो जब यीशु मसीह ये फरमा रहे थे कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, दरअसल जब यीशु मसीह ये कहता है कि मैं और बाप एक हैं, तो इसका मतलब है कि जो थॉट, जो आइडियोलॉजी, जो स्पिरिट खुदा की है, वो सेम टू सेम मेरी है। और अगर किसी की स्पिरिट, किसी की थॉट, किसी की आइडियोलॉजी, किसी का नजरिया खुदा वाला नहीं है, तो वो खुदा के पास नहीं जा सकता। अगर मेरा नजरिया, यीशु कह रहे हैं कि अगर मेरा नजरिया वो वाला है जो बाप का है, जो बाप करता है, जो बाप की सोच है, जो बाप की स्पिरिट है, अगर मैं वैसा सोचता हूं, तो मेरे वसीले के बगैर मतलब कहने का है कि जिसका ये थॉट्स, नजरिया, आइडियोलॉजी खुदा वाली होगी जैसे मेरी है, वो ही बादशाही में जाएगा। दुनिया की कोई रस्म और रिवाज, आपके बाप दादा की रवायत, चाहे वो रोजे के बारे में हो, चाहे वो दुआ के बारे में हो, चाहे वो चर्च के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में है, वो आपको बादशाही में नहीं ले जा सकती जब तक आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका स्पिरिट खुदा के साथ इकाई नहीं करता, जैसे यीशु मसीह का था। और यीशु मसीह का आने का, कहने का मकसद और आने का मकसद ये था कि वो बता सके कि मैं और बाप यानी उनका नजरिया, उसकी सोच, उसका जो सब कुछ है, वो उसमें और मुझ में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जो कुछ बाप करता है वो ही बेटा करता है। और अगर आज कोई मसीही इस बात का दावा करता है कि जो कुछ बाप करता है, जो बाप का नजरिया है, वही कुछ है, तो फिर ये वही रास्तबाजी है जो खुदा की रास्तबाजी है, ये वही रास्तबाजी है जो मसीह की रास्तबाजी है, और ये वही रास्तबाजी है जो मुकद्दसीन की रास्तबाजी है। हालेलुया। अगर रस्म और रिवाज वाला काम है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको चर्च में जाने से बड़ी बरकत मिलती है, और वैसे रूहानी तौर पे, अंदरूनी तौर पर, बातनी तौर पर आपकी सोच खुदा की सोच से मुताबिकत नहीं रखती है, आपकी इकाई मसीह की तरह बाप के साथ नहीं है, तो फिर ऐसी रास्तबाजी से यीशु मसीह खबरदार कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों की ऐसी थी, उनकी सोच खुदा के साथ तो नहीं थी, अपने बाप दादा की रवायत के साथ उनकी सोच बिल्कुल मिलती थी।
अपने बाप दादा की ट्रेडिशन रवायत उनको वो पूरा पूरा बयान करते थे। और अभी मैंने ये हवाला पढ़ा था ऊपर कि यहाँ लिखा है कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाए शरीयत का एक नुक्ता और शोशा हरगिज़ ना टलेगा। खुदा के लोगों, मुकाशफा की किताब में 21वें बाब में लिखा है, फिर मैंने देखा नए आसमान को और नई ज़मीन को, और बाकी पुरानी चीज़ें जाती रही, समंदर भी न रहा, सब कुछ न रहा। खुदा के लोगों, ये मुकाशफा की किताब 40 साल 50 साल बाद पूरी नहीं होगी, बल्कि ये तो 2000 साल पहले लिखी गई है। इसका मतलब है कि आसमान और ज़मीन टल चुके हैं। क्योंकि वजह यह है कि यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से कह रहे थे, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक ये टल नहीं सकते। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, तमाम हुआ, पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया। और यही बात वो अपने शागिर्दों को बता रहा था कि जितनी बातें मेरे हक में मूसा की तौरात में, नबियों के सहीफों में, ज़बूर में मेरी बात लिखी है, वो सब कुछ क्या हो गई जी? पूरी हो गई। तो फिर आसमान और ज़मीन टल सकता है कि नहीं? टल गया। और फिर मुकाशफा में लिखा गया कि अब पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन जाते रहे, अब नहीं है। खुदा के लोगों, अब नया आसमान है, अब नई ज़मीन है, अब मसीह की रासबाजी उसमें बसी हुई है, अब नूर है वहाँ चाँद और सूरज की हाजत नहीं है, वहाँ बर्रे ने उन सबको रोशन कर दिया है। सो खुदा के लोगों, रस्म और रिवाज से निकले, ये अकीदत वाले, मज़ाहब वाले सारे रवायत जो इससे निकले, अब रूह में आइए, रूह के साथ अकाई कीजिए, रूह में चलिए, और अब नए 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 को पहचानिए। पुराना सब कुछ कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। हमें वो वाली रासबाजी भी नहीं चाहिए, हमें शरीयत की रासबाजी नहीं चाहिए, हमें नबियों वाली रासबाजी नहीं चाहिए, हमें रसूलों वाली पुराने वाले लोगों की रासबाजी नहीं चाहिए। हमें कौन सी रासबाजी चाहिए? मसीह की रासबाजी चाहिए। और मसीह ने रासबाज ठहरा दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि और हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है जिसके पास बेटा है। हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है जिसके पास मसीह की रासबाजी है। जिसके पास ये सब कुछ नहीं, वो कोई दावा नहीं कर सकता। इसलिए खुदा के लोगों, हर रोज़ ऐसे जिए जैसे आप मसीह के साथ आज बादशाही में हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।